Just a minute. Yes, this part today very important and little bit complex. Some of you may feel. So today we are going to do this part, fiscal deficit. Now, what is fiscal deficit? Fiscal deficit means the excess of total budget expenditure over total budget receipts other than borrowing. In place of other than, there may be the word excluding, leaving, ठीक है, छोड़ते हुए, excluding or other than. So excess of total budget expenditure over total budget receipts other than borrowings, that excess is known as fiscal deficit. Simple words में meaning ये है, earlier we have done only revenue deficit. Revenue deficit is just one part of the total budget of the government. Why is it so? Because revenue budget is just one component. It is not telling us about whole of the concept of budget. ठीक है? But now here is some difference. ये जो this is fiscal deficit, this is related to whole of the budget, not any capital budget, not any revenue budget. It is comprising both the aspects. That is why the word is written here, total budget expenditure. ठीक है? अब now what is included in total budget expenditure? Now we know budget में क्या आता है, what is there in the budget? Revenue budget भी होता है as well as there is capital budget. ठीक है? तो in place of this, in order to simplify and understand this term, in place of this total budget expenditure, we may expand it as revenue expenditure plus capital expenditure. यही बनेगा ना, दोनों को ऐड कर दे तो ही हम कहेंगे ना total budget expenditure. Means because it includes, budget includes revenue side as well as capital side. So total budget expenditure is nothing else but the sum of addition of revenue expenditure and capital expenditure. If both are added, we get this main term. ठीक है? Then minus का मतलब यहाँ पर है कि expenditure is more as compared to receipt side. ठीक है? So minus total budget receipts. Now here little bit technical part is there. Total budget receipts, what should we write here? As a matter of fact, we should write revenue receipts plus capital receipts. ठीक है? अगर हम other than borrowing part को छोड़ दें for the time being, तो क्या होना चाहिए? total budget receipts, it should be equal to revenue receipts plus capital receipts. ठीक है? Now here we are writing along with this other than borrowing. हर बार साथ साथ में लिख देते हैं other than borrowing. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है excluding borrowing, both mean the same thing. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, हम इसको ऐसे समझ ले. नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर concept we have done, capital receipts. Now try to remember the components of capital receipts. कौन-कौन से components थे? First was recovery of loans, second was borrowing, what was third? Disinvestment and small savings. यही थे. याद करिए जरा, रिवाइंड करिए अपने आप को. कैपिटल रिसीट्स के 3 या 4 sub parts were there, या components were there. One was recovery of loan, one was borrowing, one was disinvestment and other receipts में जो आ जाता है disinvestment and small savings. ठीक है? अब यहाँ पे अब आप ध्यान से सोचो, कैपिटल रिसीट्स को कंसिडर करिए आप. अब उसमें देखो कि अगर हम रिकवरी ऑफ लोन्स करते हैं, हम का मतलब अगर गवर्नमेंट पेज अटेंशन टू रिकवरी ऑफ लोन, विल देयर बी एनी क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी? थिंक केयरफुली. इफ रिकवरी ऑफ लोन्स टेक्स प्लेस, ठीक है, लोन जो दिए हुए थे वो वापस ले लिए, तो विल देयर बी एनी क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी? नो, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ एसेट होगा. अपना ही एसेट फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है कि फर्दर दिस मनी इज टू बी रिटर्न टू एनीवन. नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर. ठीक है? तो इसका मतलब हो गया, रिकवरी ऑफ लोन्स इज दैट काइंड ऑफ कैपिटल रिसीट विच इज नॉट लीडिंग टू फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडिंग टू एनी फर्दर लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है? एक चीज हो गई. नाउ सेकेंड, अगर हम कंसिडर करें डिसइन्वेस्टमेंट को, ठीक है, अब स्मॉल सेविंग को फॉर द टाइम बिंग लीव असाइड, बिकॉज स्मॉल सेविंग्स कंस्टिट्यूट ए वेरी लिटिल पार्ट ऑफ द टोटल बजट रिसीट्स. बहुत ही कम होता है पार्ट, उसको एक मिनट के लिए छोड़ दे, तो बाकी बचता है डिसइन्वेस्टमेंट. नाउ व्हेन गवर्नमेंट टेक्स द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट डज इट डू? इट जस्ट सेल्स ए पार्ट ऑफ इट्स शेयर्स इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. व्हेन गवर्नमेंट सेल्स इट्स पार्ट, then now think carefully, is there any creation of liability? गवर्नमेंट अपनी ही चीज को, उसका कुछ पार्ट सेल कर रही है, आप अपनी ही चीज को, प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट सेल कर रहे हैं, तो विल देयर बी एनी क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी?
नो, लाइबिलिटी नहीं होगा. व्हाट विल हैपन, देयर इज रिडक्शन इन एसेट. आपकी प्रॉपर्टी कम हो रही है गवर्नमेंट की बाय सेलिंग द पार्ट सम शेयर, बट कोई क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी इज नॉट टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो ये दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वेदर इट इज रिकवरी ऑफ लोन और सेकेंड वन डिसइन्वेस्टमेंट, इन बोथ केसेस देयर इज नो क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी. जिम्मेदारी कोई नहीं बन रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं बन रही है. ठीक, सी अपने ही एसेट को सेल करके कुछ लेना वो एक अलग चीज है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, नो डाउट अपना एसेट तो फिनिश हुआ, बट कोई फर्दर किसी को देने वाली कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, बट व्हेन गवर्नमेंट, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट जो मेन पार्ट है, बोरोइंग. इफ गवर्नमेंट रिसीव्स मनी बाय टेकिंग हेल्प ऑफ बोरोइंग, ठीक है, किसी से लोन लेके अपने अपने आप को अपने रिसीट के तौर पे कंसिडर करती है, मतलब मनी इज कमिंग, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, इन दैट केस देयर इज क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी. ठीक है, बोरोइंग है तो इट इज टू बी रिटर्न्ड अलोंग विद द इंटरेस्ट पेमेंट. Principal amount is to be given along with that after the given specific time for which loan has been taken, borrowing has been done. So after that, main amount, principal amount as well as interest is also to be paid. So it is leading to, the concept of borrowing leads to the creation of huge responsibility or liability ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि जो कैपिटल रिसीट्स हैं उसको हम ब्रॉडली अगर कहना हो तो वी कैन से, एज यू कैन सी हियर, कम टू दिस साइड, वट आर विच कैपिटल रिसीट्स. तो जो कैपिटल रिसीट्स है उनको हम दो तरह से, वी कैन डिवाइड देम इनटू टू पार्ट्स. एक को हम कह सकते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स एंड अदर पार्ट कैन बी नोन एज नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स. ठीक है, टोटल कैपिटल रिसीट्स को, अब देखो आप, डेट क्रिएटिंग रिसीट्स कौन सी होंगी गवर्नमेंट की, बोरोइंग, यही होगा ना. बोरोइंग ही डेट क्रिएट करती है, उधार क्रिएट करती है, लोन क्रिएट करती है. तो बोरोइंग को छोड़ के बाकी की दो कौन सी बचती हैं, ये बचती है दो या तीन, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग. वैसे तो स्मॉल सेविंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट एज आई सेड अर्लियर इट कंस्टिट्यूट्स ए वेरी स्मॉल पार्ट. ठीक है, तो मेन जो है ये फर्स्ट टू बनती है, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट. सो दीज टू आर मेनली नोन एज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, और जो बोरोइंग है दैट इज नोन एज डेट क्रिएटिंग रिसीट. ठीक, तो जब हम यहाँ पे व्हेन वी हैव टू टेक दिस बजट रिसीट्स, टोटल बजट रिसीट्स, तो उसमें हमने देखना है रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स. कौन सी वाली कैपिटल रिसीट्स आर बीइंग कंसिडर्ड हियर, only those capital receipts which are not leading to creation of any responsibility. ऐसे पैसा जो मनी आ रहा है गवर्नमेंट के पास जिससे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी नहीं बन रही है, बट अदरवाइज मनी इज कमिंग, तो फिर कौन सा बचता है, वो यही दो बचते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड सेकेंड वन कौन सा था, डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल रिसीट्स हैं, ओनली दोज टू टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स आर बीइंग कंसिडर्ड. अब क्योंकि कैसे लिख के कैसे दिखाना पड़े, डिस्टिंग्विश कैसे करें, तो इसलिए हर बार साथ में ये लिख देते हैं, इट इज रिटन अलोंग विद दिस, अदर देन बोरोइंग या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. ठीक है, बुक में, किसी और बुक में भी आप पढ़ोगे एक्सक्लूडिंग वर्ड में ऑल्सो भी यूज. मतलब ये है कि वो कैपिटल रिसीट्स को कंसिडर करना है जिससे कोई बोरोइंग नहीं है, जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के रेस्ट ऑफ द जो रिसीट्स आती हैं, जो मनी आता है गवर्नमेंट के पास, सिर्फ उस मनी को कंसिडर करना है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है, मतलब वो पैसों को नहीं लेना है जिससे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, लाइबिलिटी बन रही है, उस मनी को छोड़ के. वो मनी कौन सा बनता है, वो होता है ओनली बोरोइंग. किसी से भी हो बोरोइंग, चाहे अपने विद इन कंट्री हो चाहे आउटसाइड हो, कुछ भी हो, बोरोइंग को छोड़ के रेस्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. सो इस करके ये वर्ड साथ साथ में हर बार ऐसे ही इसको अलग से लिख दिया जाता है, अदर देन बोरोइंग या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. ठीक है, आई थिंक अप टू सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड पार्ट तक क्लियर हो गया. नाउ अब देखो, अब इसको और कैसे, हाउ कैन वी राइट इट इन सम अदर वे, देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस द सेम थिंग. अब देखिए आप, अगर हम एक्सपेंडिचर्स को अलग कर दें, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू साइड को अलग कर दें और कैपिटल को अलग कर दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब एक ही है. नाउ सी हाउ कैन वी राइट दैट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लिख दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब ये माइनस ब्रैकेट को ओपन कर दें, ये रेवेन्यू रिसीट, इफ वी राइट दिस रेवेन्यू रिसीट हियर एंड कीप इट इन वन ब्रैकेट, तो व्हाट डज दिस पार्ट कंस्टिट्यूट, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या बन गया, व्हाट हैव वी डन yesterday, डे बिफोर yesterday, दिस इज नोन एज रेवेन्यू डिफिसिट. यही बना ना, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब एक्सेस है, ये एक्सपेंडिचर इज रिटन बिफोर हैंड, इसका मतलब एक्सपेंडिचर इज मोर, रेवेन्यू रिसीट्स आर लेस, तो दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज नोन एज रेवेन्यू डिफिसिट. ऐसे भी लिख सकते हैं. प्लस
अब क्या करना है, प्लस का साइन क्यों लगाया, बिकॉज वी आर नाउ डिस्टिंग्विशिंग, वी आर राइटिंग इन टू पार्ट्स, मतलब दो वे से लिख रहे हैं। एक तरफ हमने कर दिया रेवेन्यू डिफिसिट कर दिया, तो यहाँ पे क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग टोटल बजट, टोटल फिस्कल डिफिसिट, तो यहाँ पे प्लस का साइन, देन अगेन इन ब्रैकेट, नाउ हियर वी राइट दिस कैपिटल, दिस पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लिख दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस, सिंस वी हैव ओपन्ड दिस ब्रैकेट तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस कैपिटल रिसीट्स। अब हर बार इसके साथ में ये लिखना ही पड़ेगा अदर देन बोरोइंग, बिकॉज वी वांट टू टेल कि बोरोइंग का पैसा नहीं है, अदर देन बोरोड मनी, रेस्ट ऑफ द मनी हैज बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू एक्सप्रेस in terms of this separate deficits, it can be expressed in this way also. अब now और क्या इसको कर सकते हैं, in place of writing this full bracket, simply we can write revenue deficit, ये दोनों का difference is known as revenue deficit, plus अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अब यहाँ पे ये नहीं लिखना capital deficit other than borrowing, this word is not to be used, ठीक है, क्यों नहीं यूज कर सकते, आप सोच रहे होंगे ना, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेवेन्यू डिफिसिट लिख दिया, तो यहाँ पे भी वी शुड हैव रिटन कैपिटल डिफिसिट, ये लिख देते तो क्या फर्क पड़ना था, ठीक है, बट दैट इज नॉट टू बी रिटन। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो कौन सी रिसीट्स हैं, वी आर गिविंग वन करेक्टरिस्टिक ऑल्सो अदर देन बोरोइंग, ये कंप्लीट टर्म नहीं है ये, अगर तो ये वर्ड ना होता अदर देन बोरोइंग तब तो हम लिख सकते थे, वी कुड हैव रिटन हियर कैपिटल डिफिसिट, बट सिंस नाउ दिस एडजेक्टिव इज आल्सो फॉलोइंग अलोंग विद द मेन टर्म, तो इस करके हम यहाँ पे कैपिटल डिफिसिट नहीं लिख सकते, वी हैव टू राइट फुल वर्ड्स, तो वही लिख देना हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, ठीक है। अगर ये अदर देन बोरोइंग ना होता तो तब हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल डिफिसिट, बट सिंस ये पूरा कैपिटल डिफिसिट नहीं है क्योंकि हम इसमें बोरोइंग वाले पार्ट को छोड़ रहे हैं, तो इस करके हम उसको कैपिटल डिफिसिट नहीं लिख सकते, तो एज इट इज वी हैव टू राइट हियर, ठीक। सो सारे ये स्टोरी का मीनिंग इज दिस कि यहाँ पे टोटल ये इसको जो फिस्कल डिफिसिट है, यू मे राइट दिस इज ऑल्सो नोन एज बजट डिफिसिट ऑल्सो, कई बार वर्ड आ जाता है बजट डिफिसिट, तो इसको फिस्कल डिफिसिट भी कह देते हैं, बजट डिफिसिट इज ऑल्सो, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज बजट डिफिसिट। So what is the formula? Total budget expenditure minus total budget receipts other than borrowing. I hope you remember we have done one lesson, new economic policy, economic reforms. उसमें एक किया था what were the causes of या what was the need of introduction of new economic policy. तो उसमें एक first ही point था, आपको याद होगा, that was increasing fiscal deficit और mounting fiscal deficit, बढ़ता हुआ, mounting means बढ़ता हुआ, increasing, तो यही वाला concept था कि भाई एट दैट टाइम 91 तक का टाइम आते आते ये फिस्कल डिफिसिट जो बजट का डिफिसिट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, इस करके रिफॉर्म्स की देयर वाज रिक्वायरमेंट और नीड टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म। सो fiscal deficit is not a component of the budget, rather it tells us about the total deficit of the total budget, means it is not like revenue deficit, it tells us about the whole of the concept of deficit in the budget, ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाट आर इट्स implications as we have done in case of revenue deficit, तो same way यहाँ पे implications करना, implication mean what are its possible, what can be its possible meanings or results or outcomes, क्या इस अगर ऐसा होता है तो इसके क्या probable effects हो सकते हैं। तो first is debt trap, ट्रैप होता है जैसे किसी जाल में फंस जाना, जैसे हम बोलते हैं ना विशियस सर्कल, तो व्हेन गवर्नमेंट टेक्स हेल्प ऑफ इन ऑर्डर टू कवर अप इट्स डिफिसिट ऑन द रेवेन्यू साइड, जैसे पहले बताया था ना रेवेन्यू डिफिसिट साइड पे कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फुलफिल इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, तो इट मे टेक हेल्प ऑफ द कैपिटल साइड, कैपिटल रिसीट्स की हेल्प लेके अपने उस डिफिसिट को फुलफिल कर सकती है। बट व्हेन गवर्नमेंट डज दिस मींस गवर्नमेंट डेट लेती है, बोरो करती है, बोरोइंग किसी से भी हो सकती है, ठीक है, चाहे इंटरनल सोर्सेज विद इन द कंट्री मींस फ्रॉम द पब्लिक ऑफ द कंट्री और फ्रॉम other countries or other international organization. So whenever government takes help of debt or borrowing or loans, so then it finds itself in a kind of debt trap. क्यों ट्रैप हो जाता है? बिकॉज व्हेन लोन्स आर टेकन तो देन गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली टू रिटर्न द लोन बट ऑल्सो ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑल्सो। लोन जितना लिया उतना ही थोड़ी वापस करना होता है। इकोनॉमिकली कोई भी कंट्री कोई भी लोग लोन देते हैं तो व्हाई डू दे प्रोवाइड लोन? बिकॉज दे वांट सम इंटरेस्ट, कुछ फायदा चाहता है कोई तभी लोन देता है ना। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो नाउ
many times it may happen, it may not, or it may. तो यहाँ पर हम वी आर कंसिडरिंग द एक्सट्रीम सिचुएशन. तो क्या होता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज ऑल्सो टू बी पेड, तो समटाइम्स इन ऑर्डर टू पे ओनली इंटरेस्ट, गवर्नमेंट टेक्स हेल्प ऑफ बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज. ऐसे आप इसको समझो, जैसे मेरी स्क्रीन पे अभी राइट नाउ आई एम एबल टू सी हर्षिता लक्की, शिवांशी एंड नवजोत कौर. मान लो हर्षिता लक्की ने लोन लिया है शिवांशी से, ठीक है, तो इंटरेस्ट इसको पे करना, भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस कर रही है, ओनली इंटरेस्ट पे कर रही है. बट हर्षिता के पास इतना मनी भी नहीं है कि शिवांशी को इंटरेस्ट पे कर सके. तो व्हाट इज शी डूइंग? इन ऑर्डर टू पे इंटरेस्ट टू शिवांशी, हर्षिता टेक्स लोन फ्रॉम नवजोत कौर. उधार लेके दूसरे का इंटरेस्ट वापस कर रही है. अब आप देखो क्या हो गया, हर्षिता लुकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रैप हो रही है. एक तो शी हैज टू रिटर्न मनी टू शिवांशी, इंटरेस्ट ही दे रही है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है टाइम आने पे. अलोंग विद दैट नाउ शी हैज टेकन लोन फ्रॉम नवजोत ऑल्सो. अब नवजोत को भी टाइम आने पे वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, प्लस नवजोत को भी जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी देना पड़ेगा. ठीक है ना? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मतलब एक का उधार चुकाने के लिए किसी दूसरे से उधार ले लिया, दूसरे का चुकाने के लिए किसी थर्ड पर्सन से ले लिया, कंट्री से ले लिया, किसी से भी. तो व्हेन गवर्नमेंट इस तरह के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में व्हेन गवर्नमेंट कम्स, तो देन दैट सिचुएशन इज नोन एज डेट ट्रैप. मतलब in order to only pay interest payments, many times government may has to take borrowing, may has to take loan from some other sources. तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बाहर ही निकलने का कोई अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इनकम ही नहीं हो रही है तो कहाँ से वापस करे, तो इधर से लेके उधर, उधर से लेके इधर, यही काम होता है. तो दैट सिचुएशन इज नोन एज डेट ट्रैप. तो फिस्कल डिफिसिट जो है, इट इज ए काइंड ऑफ वार्निंग फॉर द गवर्नमेंट कि भाई गवर्नमेंट में गेट एंट्रैप्ड इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. एक सिग्नल है, एक वार्निंग है. सेकेंड इज फॉरेन डिपेंडेंस. नाउ इट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट टेक्स लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक या IMF, तो व्हाट हैपेंस? डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन सोर्सेज इंक्रीजेज. ठीक है? तो now what happens, now you know very well, you have read this topic in self sufficiency also as a goal of objective of planning. तो what happens कि जो foreign governments होती हैं या institution, no doubt they provide loan, but they also impose their own terms and conditions also. ठीक है ना? जिसने लेना है, इंडिया ने लेना है, तो इंडिया के ऊपर they will try their best to impose their condition. अब क्योंकि हमें ज़रूरत है, इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत है, तो ये उन कंडीशंस को, मान लो ऐसी सिचुएशन है कि मानना ही पड़ता है, और कोई रास्ता ही नहीं है और कुछ कर ही नहीं सकते. तो दैट मीन्स कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, दे मे नॉट ओनली इकोनॉमिकली इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ आवर कंट्री, बट ऑल्सो दे मे इंटरफियर पॉलिटिकली ऑल्सो. ठीक है? जैसे आपने अभी देखा ना, यू टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान इतने सारे लोन्स के चक्कर में फंसा हुआ है, जो वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंडीशंस हैं, FATF आपने सुना होगा, तो वहाँ पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि कैसे उस लोन से बाहर आए. तो अब वो जो FATF है, उनके ऊपर कई तरह की कंडीशंस लगा रहे हैं कि आप ये काम करो, आप ये काम करो. तो इसका मतलब, ऑल्दो दैट इज अवर एनिमी कंट्री, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी देयर. तो अब नाउ पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजीशन टू टेक एनी डिसीजन इंडिपेंडेंटली. दे हैव टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस. नहीं करेंगे तो लोन वाले जो जिन्होंने दिया है वो देंगे नहीं, या अपना उसको वापस करने के लिए कुछ भी तरह का एक्शन ले सकते हैं. तो व्हेन गवर्नमेंट टेक्स हेल्प ऑफ, मतलब ये फिस्कल डिफिसिट टेल्स अस कि इफ गवर्नमेंट डिपेंड्स एक्सेसिवली ऑन फॉरेन सोर्सेज फॉर लोन्स, देन इट हैज टू डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज in terms of interference in the economic as well as internal and political matters of the country. That is not good for any of the country of the world. ठीक है? Then next is burden on future generation. Burden on future generation का मतलब है, या the same thing कई जगह लिखा होता है, somewhere it is written as hampers future growth. Meaning is same. Meaning ये है कि whenever loans are taken, तो देन लोन का जो लोन्स आर नॉट फॉर 1 year or 2 year. व्हेन गवर्नमेंट्स टेक हेल्प ऑफ लोन्स, तो दोज लोन्स आर लॉन्ग टर्म लोन्स. 15 years के लिए होते हैं, 20 years के लिए, या 25 years के लिए, या इवन मोर देन दैट. तो लॉन्ग लोन्स आर मेनली, मोस्टली फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो मान लो यू थिंक अबाउट, मान लो एक लोन लिया है 25 years के लिए, तो जब व्हेन गवर्नमेंट टेक्स दिस टाइप ऑफ लोन, तो आप देखो 25 year में एक जनरेशन अगली आ जाती है, एक पीढ़ी, एक ओल्ड हो जाते हैं एक लोग, और अगले बच्चे वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होके कोई ना कोई काम पे लग जाते हैं, वर्किंग पीपल बन जाते हैं.
आप अपना देख लो एग्जांपल, आप जब तक आपकी 25 ईयर्स एज होगी, दैट मीन्स नाउ यू, मतलब एक जस्ट फॉर एग्जांपल, यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वर्किंग पॉपुलेशन एज लिमिट में आप आ जाते हैं। तो व्हेन गवर्नमेंट टेक्स लॉन्ग टर्म लोन्स, तो जिन्होंने लिया होता है पुरानी गवर्नमेंट्स ने, वो गवर्नमेंट्स तो खत्म हो जाती हैं, उनके बाद 20-25 साल के बाद न्यू गवर्नमेंट्स कम, नए लोग, कंट्री में भी लोग ओल्ड हो जाते हैं और नए लोग मतलब आगे बड़े हो जाते हैं। तो वो जो उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, जो हम सारे लोग टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स का भी पैसा जो है, मनी, दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन प्रीवियस टाइम्स। तो हम सारे लोग जो अभी लोन टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उसका मतलब ये नहीं कि दैट होल ऑफ द मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन द वेलफेयर एक्टिविटीज ओनली. Same money, some part of that money, that is also used for saving, and then the loans taken by the previous governments in the previous times, 20 years back or 25 years back, that tax amount money, that is also used for the repayment also. तो इसका मतलब हो गया कि एक प्रेजेंट जनरेशन के ऊपर तो बर्डन है ही है, वो तो टैक्स दे ही रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ इफ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन टेकन, तो जो नेक्स्ट जनरेशंस है, कमिंग जनरेशंस, दे आर ऑल्सो अंडर द बर्डन ऑफ दैट लोन. आने वाली पीढ़ियों को भी लोन का मतलब जिम्मेदारी है कि अगर पेरेंट्स ने लिया, आप देखो पेरेंट्स ने लोन लिया है, तो उसके बाद किसको वापस करना पड़ेगा? बच्चों को वापस करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाते उसके बाद उनके बच्चों को वापस करना पड़ेगा. तो सेम हियर इज इन केस ऑफ गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट नहीं वापस कर पाती है अपने टाइम स्पैन में, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है, तो एक साल में तो इट इज नॉट टू बी रिटर्न, 20 ईयर्स में वापस करना है या 25 में, तो अगली जनरेशन के ऊपर भी, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर भी एक तरह से अननेसेसरी बर्डन क्रिएट होता है. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन्फ्लेशन का मीनिंग है कि व्हेन गवर्नमेंट टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, आई होप यू रिमेंबर 3 सोर्सेज आर देयर. एक सोर्स होता है बोरोइंग का पब्लिक, इंटरनल पब्लिक ऑफ द कंट्री, वो इससे रिलेटेड हो गया डेट ट्रैप से. सेकेंड सोर्स होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग फॉरेन गवर्नमेंट एंड दिस फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड ये 2 पॉइंट्स हो जाते हैं कि बर्डन बढ़ जाता है. नाउ दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू, नाउ व्हाट इज द थर्ड सोर्स ऑफ बोरिंग फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज आरबीआई, सेंट्रल बैंक. तो इफ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम सेंट्रल बैंक, तो क्या होता है, सेंट्रल बैंक फ्री में लोन नहीं देता है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन ऑन बिहाफ ऑफ सम सिक्योरिटीज केप्ट बाय द गवर्नमेंट. जैसे अपना कोई, आपको याद है आपने 10th में पढ़ा, कोई कोलैटरल रख के, अपनी कुछ वैल्यूएबल एसेट की कोई ओनरशिप रख के, कोई पेपर्स रख के, उसी के बदले में लोन मिलता है. तो सिमिलरली आरबीआई लोन प्रोवाइड तो कर देता है, बट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट के सेविंग सर्टिफिकेट्स को अपने पास रख के, कुछ सिक्योरिटीज को अपने पास रख के, ठीक है. अब जब लोन देता है तो आरबीआई स्टार्ट्स इशूइंग न्यू करेंसी, नए नोट छाप के देता है, पुराने नोट्स में से नहीं जो ऑलरेडी विच आर इन सर्कुलेशन, दे आर नॉट टच्ड. लोन इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय इशूइंग, बाय इशू मतलब पब्लिश करके, छाप के, बाय इशूइंग न्यू करेंसी. तो जब न्यू करेंसी गवर्नमेंट को दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो देन दैट इज ब्रॉट इनटू सर्कुलेशन. कैसे लाते हैं गवर्नमेंट सर्कुलेशन में? गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वेरियस डेवलपमेंटल या डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर, कुछ भी काम करे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कुछ भी काम करते हैं, तो लोगों को मतलब इन ए वे, पहले पीपल आर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट, उनसे काम लेके देन मनी इज गिवन टू देम, मतलब वेजेस एंड इनकम आर दे आर गिवन टू देम. तो इन दैट इज द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग मनी इन सर्कुलेशन. वैसे ही नहीं किसी को कह देते कि आके पैसे ले जाओ, फ्री में नहीं, मतलब गवर्नमेंट पहले काम प्रोवाइड करती है, फिर लोगों को वेज देती है, सैलरी देती है, इनकम देती है, तो उस तरीके से वो मनी सर्कुलेशन जब हमारे पास आ गया, तो दैट मीन्स नाउ दैट मनी इज इन आवर हैंड्स, वी मे परचेज द थिंग्स. तो जब गवर्नमेंट इस तरह की हेल्प लेती है आरबीआई से, तो गवर्नमेंट के पास कंट्री के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं. तो जब पैसे बढ़ जाते हैं तो लोगों के पास परचेजिंग पावर भी ज्यादा हो जाती है, मतलब उनकी कैपेसिटी टू परचेज, मार्केट जाने की जो एबिलिटी है, दे स्टार्ट मेकिंग डिमांड फॉर न्यू एंड न्यू गुड्स. तो क्या होता है फिर जो है कंट्री के अंदर, व्हेन देयर इज मोर डिमांड, तो दैट एज कंपेयर टू सप्लाई, तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है. चीजें अभी उतनी नहीं बनी हुई हैं, बट लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, दे आर रेडी टू स्पेंड दैट मनी, their demand increases. So whenever demand increases in comparison to this supply, so there is always inflation. ठीक है. तो these four basically 4 implications are there. Next is कि what are the probable sources to finance this deficit. कि अगर ये लॉस हो ही रहा है, घाटा पड़ रहा है, तो क्या हो सकता है, कौन से सोर्स हो सकते हैं.
सी नाउ अगेन सोर्सेज आर सेम, जिनके करके हो रहा है वही ही सोर्सेज हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस फिस्कल डिफिसिट. तो टू सोर्सेज आर देयर, बोरोइंग, सेकंड इज डिफिसिट फाइनेंसिंग. अभी ये जो मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन, ये जो मैंने बोला कि आरबीआई व्हेन प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट helps the government to cover its budget deficit. तो वो जो न्यू करेंसी इशू की जाती है, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिफिसिट फाइनेंसिंग. ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का ही नाम है डिफिसिट फाइनेंसिंग. मतलब व्हेन आरबीआई इशूज न्यू करेंसी टू गवर्नमेंट फॉर कवरिंग इट्स लोन्स, कवरिंग इट्स expenditures by issuing new currency, to that concept, that process is known as deficit financing. Borrowing का already you know the meaning. Now you see carefully. अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये बोरोइंग और डिफिसिट फाइनेंसिंग आर द सोर्सेज टू फाइनेंस, मतलब इनकी हेल्प से ये डिफिसिट को कम कर सकते हैं. बट यू थिंक केयरफुली, इनकी हेल्प से कम तो क्या होना है, ड्यू टू दीज वेरी रीजन ही तो डिफिसिट हो रहा है. यही हुआ है ना हमारे पूरे, हमने जो समझा है मीनिंग तो यही है कि इन्हीं खास करके बोरोइंग्स के करके और एज वेल एज न्यू नोट्स की करेंसी के इशू के करके, यही तो रीजंस हैं इसके होने के, फिजिकल डिफिसिट के. तो इन ए वे वी कैन से भी ये दीज टू जो है, दे आर नॉट ओनली द कॉजेज ऑफ फिजिकल डिफिसिट एज वेल एज दे आर द सोर्सेज. मतलब बस यही है कि इसको हम, और कोई चारा नहीं है गवर्नमेंट के पास, किसी और तरीका नहीं है कि इसको पूरा कर सके. तो देन व्हाट कैन बी द प्रोबेबल मेजर्स. अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना कोई तो मेडिसिन जैसे होता है, मेडिसिन लेनी है, तो सेम वे फिर क्या करे गवर्नमेंट, अगर ये ट्रैप में आई गई है ये सारे के चक्कर में, तो व्हाट शुड बी डन. तो देयर आर ब्रॉडली टू मेजर्स आर देयर, they are same as we have done earlier in case of revenue deficit. One is reduce public expenditure, मतलब there should be reduction. कौन सा public expenditure? That expenditure which is useless, which is wasteful, unnecessary. जैसे बोलते हैं ना फिजूल खर्ची जिसको बोल देते हैं, एक्स्ट्रा वेजेंट या नॉन प्लान्ड, मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मनी खर्च किया जा रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करे, जो यूजलेस चीज़ों के ऊपर काम खर्चा हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करे. ओनली दैट इज़ वन ऑफ द वेज, और कोई रास्ता नहीं है. ठीक है. देन सेकेंड इज इंक्रीज रेवेन्यू, कि भी अपने खर्चों, सिंपल लॉजिक है ये, दिस अप्लाइज टू एनी इंडिविजुअल ऑल्सो, कि अपने खर्चे कम करो और अपनी इनकम को बढ़ाओ. तो हाउ कैन इंक्रीज इन रेवेन्यू, हाउ इज इट पॉसिबल? अगेन सेम, बाय इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस. सी यहाँ पर ये सेम इसका क्या आ रहा है, क्योंकि फिजिकल डिफिसिट इज रिलेटेड टू होल ऑफ द बजट, ये पूरे की बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ ये नहीं कहना कि ये तो रेवेन्यू डिफिसिट में होता था, तो रेवेन्यू डिफिसिट भी तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिजिकल डिफिसिट, इसका ही एक हिस्सा है. तो सेम थिंग्स कैन बी रिटन कि ईदर गवर्नमेंट कैन इम्पोज न्यू टैक्सेस, नया कुछ इंट्रोड्यूस कर दे, और अगर नया इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं तो वट एवर एग्जिस्टिंग टैक्सेस आर ऑलरेडी दे आर देयर इन द मार्केट, देयर इन द इकोनॉमी, उनका रेट इंक्रीज कर दे. मान लो पहले लोगों पे लगा रहे हैं मान लो 5% टैक्स, तो नाउ अब उसका रेट बढ़ा दे 7% कर दे, या 7 है तो 10% कर दे. मतलब किसी तरीके से इनकम इज टू बी जनरेटेड फॉर द गवर्नमेंट. तो एग्जिस्टिंग टैक्सेस का जो प्रपोर्शन है, परसेंट है, वो इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट. देन चेक ऑन टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी करना, जिसको हम आम बोलचाल में बोलते हैं ब्लैक मनी बोल देते हैं. तो ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी सच में ब्लैक नहीं, ब्लैक मनी का मतलब कि जिनके ऊपर टैक्स बनता है देना, वो लोग बचाते हैं टैक्स को, किसी ना किसी तरीके से अवॉइड करते हैं कि टैक्स ना देना पड़े. तो दैट कॉन्सेप्ट टेक्निकली उसके लिए वर्ड इज यूज्ड इवेजन. तो गवर्नमेंट शुड टेक such type of steps कि those people who have huge income but they are not paying the required tax to the government, तो they should be controlled. किसी तरीके से उन लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाए, उनके ऊपर थोड़ा सा अपना नेट चलाया जाए, नेटवर्क उनके ऊपर काबू किया जाए कि वो टैक्स को इवेड ना कर सकें, बचा ना सकें, मतलब दे हैव टू पे द टैक्स. देन लास्ट वन इज एफर्ट्स टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. ठीक है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो पब्लिक, जिसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बोल देते हैं, जो सिंपली गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस हैं, जो भी काम है, उनकी इनकम को बढ़ाने का एफर्ट होना चाहिए. मतलब और क्योंकि और इन, आप ध्यान से देखो, इनके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, है ही नहीं कोई और. अपनी इनकम को ही बढ़ाना है तो जो अपनी चीज़ें हैं उन्हीं को थोड़ा उनके ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा. तो जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी इनकम को कैसे बढ़ाएं? बाय ब्रिंगिंग मोर एफिशिएंसी, by avoiding wastage of time, by bringing more accountability, by bringing them on the competitive terms, उनमें थोड़ा सा और efficiency उनको बढ़ाया जाए, मतलब काम ज़्यादा किया जाए, तो in that way only income can be increased. ठीक है. So these are the various ways to increase this
to not increase, rather to check this fiscal deficit. There is no other option available with the government, only except these, वे अपने income को बढ़ाएं और अपने expenditure को कम करें, ठीक है? So this was all about this fiscal deficit. Next is about primary deficit. Next part is, now this picture I will send, this is from some other book, आपकी बुक में भी है, but मैं ये बाद में आपको send कर दूंगी. This is all what I have just explained. Now primary deficit. Next concept is primary deficit. Now primary deficit means, this is very simple and short. Primary deficit का meaning है, this is equal to the difference between fiscal deficit and interest payments. ठीक, ये fiscal deficit right now अभी जो हमने सारा समझा अंडरस्टैंड किया है, अभी जो पहले किया सेम fiscal deficit. अब अगर उसमें से if we reduce interest payments, only interest payment, कौन सी interest payments होती है? Interest payments of previous years. जैसे हम इस साल की बात करें तो इंटरेस्ट पेमेंट तो उसी के ऊपर होगा ना जो लोन हमने पहले से लिए हुए हैं, पिछले किसी टाइम पे लिए हुए हैं, और पिछले साल उनकी जो भी इंटरेस्ट की जो भी इंस्टॉलमेंट बनती थी उसको हमने पे किया है. तो जो भी पिछले साल का इंटरेस्ट के ऊपर ही सिर्फ पैसा खर्च हुआ है, मनी विच हैज बीन स्पेंट ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, तो उसको, उस मनी को अगर हम माइनस करते हैं फ्रॉम ये टोटल फिस्कल डिफिसिट, देन वट एवर मनी इज लेफ्ट दैट इज नोन एज प्राइमरी डिफिसिट. ठीक है, मतलब ये कि सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है उसको निकाल दें, उस मनी को माइनस कर दें, तो जो भी बचेगा, जो भी अमाउंट बचेगा, दैट विल बी नोन एज प्राइमरी डिफिसिट. ठीक है, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि गवर्नमेंट जो है, दैट यू कैन सी फ्रॉम द बुक ऑल्सो, फर्स्ट इम्प्लीकेशन पॉइंट्स बना लेने, बुक में पैराग्राफ एक दिया हुआ है तो यू कैन मेक द पॉइंट ऑल्सो. तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन इज कि भाई इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बोरोइंग रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर. मतलब आपने जितना इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देना है उसको निकाल के बाकी का जो अगर डिफिसिट बचता है, इसका मतलब अभी आपको उतनी बोरोइंग की और ज़रूरत है. मतलब एक तो इंटरेस्ट के ऊपर देने के लिए पैसे चाहिए, अगर उसको निकाल दें तो बाकी के काम तो अभी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, बाकी डिफिसिट अभी हो ही रहा है. तो इसका मतलब जो ये प्राइमरी डिफिसिट का कॉन्सेप्ट है, इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स, जो उधार हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए? टू मीट द एक्सपेंडिचर. मतलब अपने सिंपल वर्ड्स में आ जाओ, आप अपनी लाइफ को देखो, अगर हमें अपना घर के बजट को चलाने के लिए, अपने घर के काम को चलाने के लिए कुछ पैसा उधार चाहिए, वो हमने देखना है, उसमें से वो पैसे को माइनस कर देना है जो हम पिछले सालों के इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. मतलब इंटरेस्ट को एक तरफ निकाल दें, तो ये फिस्कल प्राइमरी डिफिसिट ये हमें बताता है कि हमें कितनी बोरोइंग की ज़रूरत है अपने रूटीन काम को चलाने के लिए. तो एक तो ये चीज़ बताता है. सेकंड ये बताता है कि अगर इन केस, ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, इन केस मान लो ये प्राइमरी डिफिसिट ज़ीरो है ही नहीं, मतलब वेरी लेस, या मान लीजिए फॉर द मोमेंट इट इज़ ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया फिर क्या होगा? फिस्कल डिफिसिट ये हो गया माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो अब ये माइनस साइड अगर इस वैल्यू को इधर ले जाएं तो ये जीरो प्लस ये इंटरेस्ट पेमेंट इधर आके हो गया प्लस इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट. तो जीरो को लिखें या ना लिखें हार्डली मैटर्स, तो क्या बच गया? इंटरेस्ट पेमेंट्स आर इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट. मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि कई बार ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन होती है कि गवर्नमेंट को और किसी काम के लिए बोरो करने की जरूरत नहीं है, बाकी के सारे काम हो रहे हैं, मतलब इतनी की इनकम हो रही है फ्रॉम कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू रिसीव्ड, सब कुछ हो रहा है, बट सिर्फ उधार की जरूरत पड़ रही है पुराने किसी लिए हुए लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट को देने के लिए. मतलब रूटीन काम तो सारा कुछ चल रहा है, बट सिर्फ उधार फिर भी लेना पड़ रहा है, अभी पैसे बचे नहीं है और कुछ बचता नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो जो इंटरेस्ट देना है पुराने लोन्स के ऊपर, तो उसी के लिए ही बोरो करना पड़ता है. तो दैट इज द एक्सट्रीम सिचुएशन. भी इन केस फिस्कल डिफिसिट, सॉरी प्राइमरी डिफिसिट अगर जीरो है, तो इन दैट केस इट शोज